We have to start some initial introduction topics today that will make you familiar with object-oriented programming. Content of today's lecture will be C++ language features, history, C++ program execution life cycle क्या होने वाली है, that will be discussed. Some kind of directories like hash include, and second one is the comment line, identifiers, variables, keywords, these kind of things we also have to discuss, and syntax of some functions like main and exercise, or basic bits and bytes, hexadecimal, and data input output streams. We try to cover these topics in this lecture. So we have to start. What is computer programming language? The first question is, programming language actually क्या होती है? Why we need the programming language and why we learn programming language? Actually, if we have to discuss about languages first, then we will get a better understanding. जैसे कि हम जनरल कम्युनिकेशंस के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, any kind of language we have to use for communication with each other, to make instructions and make order or make request for everyone or each other. These kind of communication is known as languages. कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा ही है. अगर कंप्यूटर को आप कोई भी काम करने के लिए बोलोगे तो कैसे बोलोगे? देयर वी नीड लैंग्वेज. So we can write some instructions and give to computer for perform some tasks, some work. So that will be real requirement of programming language. So we can say language or programming language both are same, because of language is used to interact us with each other, and programming language is allowed to interact with computer systems. Only difference. Okay, so we can say language is means to communicate with each other or interact with each other. That will be a person and system, that will be a system to system, and that will be a person to person. Simple language is means to communicate. If a person want to communicate with system or with machine, then we require a language, or that language is known as programming language. ठीक है? So that will be mentioned here. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो दैट विल बी जस्ट ए लैंग्वेज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर. ये जस्ट एक भाषा है जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है ना. ओके, there will be some kind of programming languages, because but here we need to learn about C++ programming language, that will be object oriented programming. We already discussed in zero lecture, and it is a extension of C language. C language already you already learn from your side in first year. That is that was a procedural programming language, you know. So here we learn about object oriented paradigm, object oriented models, object
concept of objects, how a object will be work and how object will manipulate functions and data, how we have to instruct, you have to provide instructions via objects. These kind of some things we have to discuss in this topic. That will be a tool to execute our C++ programs in online mode. ठीक है, ध्यान रखना हम पूरे जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, इवन ऑफलाइन के अंदर भी हम लैब के अंदर इसको यूज करते हैं, बट ऑनलाइन के अंदर तो 100% यही यूज होना है. onlinegdb.com. I will show you after some slides how this compiler works and what kind of environment it will provide to us. Okay. The genesis of C++ and what kind of history we have to learn about C++ language, what is the origin of C++ and how much stages there are available to develop C++ language or OOPS concepts. If we talk about very initially or very basic state, then that is developed by Bazarnes Trust Group in 1983. Okay, at the place of AT&T Bell Laboratories in New Jersey. Or who developed C? Dennis Ritchie. Dennis Ritchie, very good. In which year? 1972. Good. Okay. तो ये ऑलमोस्ट 1983 के अंदर बाजारनेस ट्रस्ट ग्रुप के द्वारा डेवलप की गई थी. ओके, एंड देयर इफ वी टॉक अबाउट बिफोर 1983, what is the history of programming languages, or we can say object-oriented concepts? Then the Simula 67 is one of the object-oriented language that developed before 1983. यानी C++ लैंग्वेज से पहले ये डेवलप हो चुकी थी. ठीक है, इसके अलावा सी लैंग्वेज 1972 के अंदर डेवलप हो चुकी थी एंड एल्गोल भी आपकी 68 के अंदर डेवलप हो चुकी थी. तो these are some languages that strongly belong to C++ and developed before the C++. यानी इन C++ की जो कहीं ना कहीं जो अपने बेस मानते हैं वो इन लैंग्वेजेस को मानते हैं. मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से ये रिलेट करती है. डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा हम इसको समझेंगे. लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसका हम करेंगे. If we talk about before 1983, then the language that known as C++ is called C with classes. It means C++ developed before 1983, not in exactly 93. पहले डेवलप हो चुकी थी, बट पहले इसका नाम क्या था? C with classes. As it was simply an extension of C language. I already talk about this. है ना? Extension का मतलब पुरानी चीजें as it is रखी गई, some new features added in old programming languages. Okay. Why the name C++ is adopted for this language? Because of जैसे हमने बात की कि C++ जो है वो एक्सटेंशन है C लैंग्वेज का, है ना? और
प्लस प्लस ऑपरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स इंक्रीमेंट्स, है ना? तो सी लैंग्वेजेस के फीचर्स को एज इट इज रखा गया। तो सी लैंग्वेज के फीचर्स तो हमारे पास थे ही थे, तो सी लैंग्वेज को सी लैंग्वेज तो हम कह सकते हैं। उसके अंदर कुछ नई चीजें ऐड कर दी गई, दैट्स व्हाई वी ऐड द ऑपरेटर प्लस प्लस। So the history of name as adapted C++ will be that. So programming languages are classified in three categories. I think you already have knowledge about this because of very initially in C language, it was discussed. Once more we have to discuss. Generally we go through from that slide, this slide. There are three categories you all know. First one is the low level programming language. Second one is the high level programming language. And third one is the middle level programming language. All these categories are available at present time. In low level language, some kind of languages like machine language and assembly language. There in machine language we have used only binary language, yani all code conducted in 0 and 1 binary form. So there will be very difficult because of everything we have to write in 0 and 1's form. And other than machine language, second one is the assembly language. Assembly language is also in category of low language because of there will be some symbols, and these symbols are known as mnemonics, if you hear about this. And the second category will be high level language. There in high level language, usually we use for instructions writing English. हम सब कुछ इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, ठीक है? Some examples of this category: Ada, JavaScript, Python, Ruby. Why included these all languages? Because of these all languages instructions written in English language and directly executed by the system, by the provided environment. Then what kind of language is included in middle level language? Some languages that have the features of high level language as well as low level language. If we talk about C language, C++, Java, so these kind of languages are included in middle level language. Because of source code of these languages written in high level language, but executable code are first converted in low level language, then it will be executed. So there will be some concept of compilers, interpreters, है ना? तो यहाँ पे कंपाइलर्स और इंटरप्रीटर क्या करते हैं? हमारे द्वारा जो इंग्लिश में लिखे गए कोड है उनको लो लेवल कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट होते हैं. That's why these kind of languages included in middle level programming language. I think the concept is clear of three category of languages. So first, the history of C++ programming language. What history here? First of all, in 1960, Christian developed Simula 67. That is a object-oriented language with features of object, class, inheritance, subclasses, procedures, etc. ठीक है? किसने डेवलप किया था? क्रिस्टन ने 1960 के अंदर. Okay, then
In 1972, Dennis Ritchie developed C programming language. ये भी बेल लैब्स के अंदर ही बनी थी 1972 के अंदर. Then from combination of both in 1979, Bazaar ने Strassroup developed a language and named C with classes. ठीक है, बाजार ने स्ट्रूप ने इसने अपने पीएचडी थीसिस के अंदर, पीएचडी रिसर्च के अंदर इन दोनों लैंग्वेजेस को लिया और दोनों के फीचर्स को कंबाइंड किया और कंबाइंड करके एक नई लैंग्वेज बना दी और जिसका नाम रखा गया सी विद क्लासेस. ओके, सो C++ is developed in 1979. That is the starting of its development. Then in 1983, some of the students of Bazarnes Strassroup or some scholars of the Bazarnes Strassroup started work on this project and add some new features and some kind of things added by these that group, and the name changed from C with classes to C++. सर एक क्वेश्चन पूछना था सर. Yes, you can सर proceed. जैसे हम अपनी क्लासेस बना लें, मतलब जो अभी क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं उससे और ज़्यादा बना दें और वो इनके अंदर इंक्लूड करके क्या हम अपनी C++ लैंग्वेज बना सकते हैं? यू कैन गो ओनली, देखो इसमें क्या होता है ना, जो भी लैंग्वेजेस बनी हुई होती हैं उसमें आप नई डायरेक्टरीज ओनली बिल्ड करके ऐड करने से आप उसको लैंग्वेज नई नहीं बना सकते भाई. आप अगर क्लासेस ऐड करोगे तो वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड ही क्लासेस होंगी. देन आप उसमें नया क्या ऐड कर रहे हो? अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स की नई क्लासेस ऐड करो तो अगर आप जैसे जो नई मार्केट में लैंग्वेज, जैसे मान लो पाइथन चल रही है ना, अगर आप पाइथन के फीचर्स को अगर C++ के साथ इनबिल्ट कर दो और क्लासेस में कुछ इस टाइप की आप डायरेक्टरीज ऐड कर दो कि आपका C++ का जो कंपाइलर है वो पाइथन को भी एग्जीक्यूट करने लग जाए, पाइथन के जो लाइब्रेरीज है उनको सपोर्ट करने लग जाए, देन दैट विल बी अ न्यू लैंग्वेज, है ना. तो रिसर्च वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट वर्क. आप जो बोल रहे हो वो प्रोजेक्ट वर्क है. यू कैन ऐड न्यू क्लासेस बट दैट विल बी अ प्रोजेक्ट वर्क, नॉट ए रिसर्च वर्क, है ना. यस सर. रिसर्च वर्क होता है तभी किसी नई चीज को मान्यता मिलती है कि ये कुछ नया है. प्रोजेक्ट वर्क वी अडॉप्ट ऑल टेक्नोलॉजीज एंड जस्ट वी use these technologies and develop some new things. Okay, we move forward. There will be in 1998 यहाँ पे ISO जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसने C++ को मान्यता दी थी. तो यहाँ से ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनी थी. सो इसका एक वर्जन C++ 98 के नाम से भी आता है. तो कंप्लीटली वी कैन से जो एक स्टैंडर्ड्स के साथ C++ लैंग्वेज आई थी वो 1998 के अंदर आई थी. ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन को एंड वी गो बैक ऑन आवर PPT प्रेजेंटेशन. So one of the question for all of you, okay, maximum students reply in form of D and some of B and D. So let me show the answer. Answer will be D. Most of all replied right answer. Good. Then next one. Quiz second. Please read carefully and answer. Okay. So the answer is B and D both.
middle level language, and it mainly used in development of gaming engines. There is the wide use of C++ in gaming engines. सर फिर हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? देखो, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, वो डायरेक्टली आईडीएलए टाइप के एनवायरनमेंट पे एग्जीक्यूट करती हैं, जैसे आपकी पाइथन है, ये सब लैंग्वेजेस है। और ये वो लैंग्वेजेस हैं जो पहले ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो पहले आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हो सोर्स कोड को, एंड देन इट कन्वर्टेड by the compiler in 0-1 form यानी मशीन कोड, then it will be executed. जो पाइथन है सर वो डायरेक्ट मतलब हाई लेवल को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करती है। पाइथन और वो जो है ना, पाइथन टाइप की जो लैंग्वेजेस है ना, वो एक्चुअली डायरेक्टली एनवायरमेंट्स पे रन होती हैं, जीयूआई एनवायरमेंट्स पे रन होती हैं, वहां पे कंपाइलर्स की नीड नहीं होती। जैसे आप पाइथन का अगर आप सेटअप करते हो ना, तो उसमें आप स्टूडियो या जुपिटर टाइप के जो आपके जो एनवायरनमेंट है, उससे आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। देयर इज नो नीड ऑफ कोड कंपाइलेशन, है ना। तो देयर विल माइनर डिफरेंसेस। ओके, सर सी प्लस लास्ट ईयर प्लस, हमको बताया था कि सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। यस, सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, मैंने कब मना किया आपको। केवल बाइनरी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को छोड़ के सभी की सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज उसको बोलते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के साथ साथ लो लेवल के फीचर्स भी रखती हो। तो सी और सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल मिडिल लेवल लैंग्वेजेस आर हाई लेवल लैंग्वेजेस, but still they have features of low level language, इसलिए इनको अलग से मिडिल लेवल लैंग्वेज में मेंशन करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज हम इंग्लिश में लिखते हैं इनको। भाई सोर्स कोड जो आप लिखते हो सी का, वो इंग्लिश में तो लिखते हो, यस सर। देन इट इज हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ रीजंस इसके बहुत सारे हैं। आप जब इसको ब्रॉडली कहीं बुक्स में रीड करोगे ना, तो आप देखोगे कि सी और सी प्लस प्लस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए भी काम आती है। और जब आप कैटेगराइजेशन करते हो तो देखो, सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो बनते हैं वो मोस्टली लो लेवल लैंग्वेजेस में बनते हैं। तो जब सी और सी प्लस प्लस आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प कर सकती है, इसका मतलब इनके अंदर वो एबिलिटी है जो लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर एबिलिटी होती है। तो ये सिस्टम हाई सॉफ्टवेयर लेवल, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, even Unix operating system completely developed by the using of C language। यस सर। और विंडो, जो आपकी विंडोज जो सॉफ्टवेयर है, इनके अंदर भी बहुत सारे कंटेंट सी प्लस प्लस के अंदर डेवलप किए गए, बहुत सारे, है ना। सर तो उसका जो इसलिए, विंडोज का जो कर्नल है, हाँ, सर विंडोज का जो कर्नल है वो पूरा सी प्लस प्लस से बना है। कंप्लीट नहीं कह सकते, देयर विल बी ए लॉट ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, बट ए हग पार्ट ऑफ these Microsoft operating systems will be also developed in C++ language। और सर उसका कमांड इंटरप्रेटर किससे बना होता है? कमांड इंटरफेस जो है, उसका तो मुझे कंप्लीट आइडिया नहीं है कि किसमें बना हुआ है। सो वी कांट हेल्प इन ऑन दैट टॉपिक बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स यू हैव डिस्कस इन योर सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, है ना। तो आप वहाँ Yes. पे इन चीज़ों को लर्न करोगे कि आपके यूज़र इंटरफेस किस टाइप के टूल्स को इंक्लूड करता है, और यूज़र जो आपका GUI है और CUI है वो अलग अलग किस टाइप से वर्क करते हैं, है ना। दैट विल बी
discussed there. Yes, sir. So the first statement, please read carefully. There mention some things that will be important for C++ language. Apple OS, various versions of Microsoft Windows are written in C++ language. Even some applications for iPod also written in C++. So you can understand the importance of C++. है ना भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े सॉफ्टवेयर्स माने जाते हैं, है ना? यू एग्री विद दिस पॉइंट? यस सर, है ना? यस सर। Yes. अगर इसके अंदर आप C++ का यूज कर रहे हो, इट मींस C++ इज द वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, है ना? यस सर। ओके, Symbian OS is also developed using C++ language. So there will be some operating systems for cellular phones is also developed using C++ operating system. I don't talk about Android operating systems. That will be cellular phone operating systems. These are different from Android operating systems. सर ये फोन्स अपने यहाँ आते थे? Yes, बिल्कुल तो सर जो नोकिया 3310 है वो Symbian OS पे वर्क करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, all are with Symbian operating systems. जो भी सेलुलर फोन्स थे वो सारे के सारे आपके Symbian ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे थे ऑलमोस्ट, है ना? तो वहां पे आप C++ को उसकी कोडिंग के लिए यूज करते थे. Okay, now we will move forward. On next point, C++ programming language are saved in form of as C language, but C language have the extension in form of .c, but C++ language has the extension .cpp. सेव करने का कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे आपने सी में प्रोग्राम्स को सेव किया था वैसे ही आप C++ में सेव करोगे, बट वहां पे आपने .c एक्सटेंशन यूज किया था, यहाँ पे आप .cpp एक्सटेंशन यूज करोगे. ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. आपको C++ के प्रोग्राम सर आपसे एक चीज पूछनी थी सर. यस सर जो C++ हम पढ़ने वाले हैं इसमें, तो हम STL को एक्सप्लोर करेंगे या फिर इसका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्लासेस बनाएंगे? देखो वैसे तो जो C++ है वो आपकी C लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, बट अकॉर्डिंग टू आवर RTU कैरिकुलम वी हैव टू स्टार्ट विद C विद क्लासेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट्स, है ना? बट हम डायरेक्टली क्लास और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते. वी हैव नीड सम नॉलेज अबाउट इनपुट आउटपुट फंक्शंस, बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्कैनअप और प्रिंटफ यूज नहीं किए जाएंगे. सम न्यू काइंड ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस वी हैव टू यूज, एंड इसके साथ साथ हाँ हाँ बिल्कुल, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, सो वी हैव टू स्टार्ट विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. C out or C in are objects, and these objects, which kind of objects belongs to which kind of classes, that is also an important concept. So हमें जो स्टार्ट करना है वो एक्चुअली हम क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हो, स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो ना C लैंग्वेज के अंदर. तो स्ट्रक्चर और क्लास बोथ आर वेरी सिमिलर. सो यस सर. सो लैब जो आपकी स्टार्ट होने वाली है वो हम स्टार्ट करेंगे सम काइंड ऑफ C++ लाइब्रेरीज,
इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर, ये हमारी फर्स्ट लैब रहेगी। सेकेंड लैब में हम क्लास और ऑब्जेक्ट से हमारे प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। So that all kind of things we have to discuss in OOPS lab. I think आज ये हमारी लैब शेड्यूल आफ्टर लंच, है ना। तो उसके अंदर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम एग्जीक्यूशन का जो क्राइटेरिया है वो रखने वाले हैं, है ना। So there will be some programs like compilers and interpreters that will be compile our source code and generate some execution codes or objects codes. ये सब सिमिलर है आपके सी लैंग्वेज से, ये सब चीजें आप सी लैंग्वेज में डिस्कस कर चुके हो, है ना। आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ कोड देयर विल बी some kind of linkers, they link your code and generate an executable file. Just if we take an example of Windows, then executable files are .exe with extension of .exe. Okay. So we move on live demonstration of a execution strategy or a life cycle of C++ program. On step 1 write code. सबसे पहले हमें कोड राइट करने हैं, और कोड जो है वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में यानी इंग्लिश के अंदर हम राइट करने वाले। तो ये मान लो हमने कोड जो है वो एडिटर पे राइट कर लिया, ठीक है। देन वी विल सेव द प्रोग्राम, और हमें सेव कैसे करना है, विद .cpp एक्सटेंशन। ओके, फाइल टू सेव, जैसे मान लो ये hello.cpp नेम से आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो चुका है। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी कंपाइलेशन। आपका कोड जो है वो कंपाइल होगा, और कंपाइल के अंदर मेनली हम क्या करते हैं, कंपाइल के अंदर फर्स्ट स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करते हैं, और सेकंड स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स फाइल्स बनती है उसके अंदर जो टोकन्स बनते हैं उनको हम लिंक करते हैं। लिंक का मतलब हम एक सीक्वेंस बनाते हैं इंस्ट्रक्शंस की, कि अपना जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद अगर कोई एरर आती है, if there is any error, then we will go back on our source code and remove the error and follow the same steps. हम वापस सेव करेंगे, हम वापस कंपाइल करेंगे, और अगर कोई एरर यहाँ पे हमारे पास नहीं आती है, then we will move forward for generating object file. ऑब्जेक्ट फाइल जैसे जनरेट होगी हमारा प्रोग्राम जो है लिंक होगा। यहाँ हमारा कोई रोल नहीं होता है, हमारा रोल केवल और केवल कंपाइलेशन तक होता है। उसके बाद कंपाइलर ऑटोमेटिक करता है सब कुछ। ऑब्जेक्ट फाइल वो क्रिएट करेगा, लिंकिंग का काम भी आपका कंपाइलर ही करेगा, हमें कुछ भी कहीं भी क्लिक नहीं करना। जैसे ही लिंक हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो exe फाइल जनरेट हो गई। अब ये exe फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होगी और हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। और ये आउटपुट आ गया आपका हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेप्स रहेंगे। So there will be one more question for you. Please give answer quickly. A, C and D all are correct. Understanding a simple C++ program. I think we have 9 minutes left. Okay, so we have to discuss this topic.
तो यहाँ पे देखो आपको एक छोटा सा कोड दिख रहा होगा. There will be first line is hash include iostream. Second one is using namespace std semicolon int main and some braces, and one line is cout, or there will be some message for display. So we will discuss this step by step. In very first line, there will be hash include iostream. So first we will, I will explain how it is, it will be work and what is it. सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला देखो कैरेक्टर आता है हैश. हैश कैरेक्टर को मेनली हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं. हैश इज द प्री प्रोसेसर. ठीक है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कभी भी इसको हैश नहीं बोलेंगे, है ना. ट्राई टू स्पीक फॉर इट प्री प्रोसेसर. ओके. And then next one is include. Include is nothing but it is a command. Okay. And then iostream. Iostream is just a class that have some kind of input output functions. जैसे कि आप C लैंग्वेज के अंदर हेडर फाइल इंक्लूड कर देते स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h, है ना. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जो आप इंक्लूड करते थे जिसके अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन जो अवेलेबल हुआ करते थे, ठीक वैसे ही iostream एक क्लास है जिसके अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल है ना. There are two objects of this class. One is cout and another is cin. cin जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सभी के सभी जो इनपुट फंक्शंस है इस क्लास के उनको एक्सेस करने का काम करेगा, और cout जो है वो आउटपुट फंक्शंस को एक्सेस करने का काम करेगा. So I already mentioned these things. The iostream is a class and it include input output functions and input output kind of templates that will be widely used with every C++ program. Some kind of input output functions also related to buffered errors and buffer kind of situations because of sometimes of scenarios our data types or our objects have limited memory space, but when if we want to give some big data or we want to store some large amount of data, then these object and classes are responsible to give you buffer kind of messages. If we talk about second statement or second instruction, that will be namespace std. Using is a command, है ना. यूजिंग का मतलब यूज करना. दैट जैसे इंक्लूड एक कमांड थी उसी प्रकार यूजिंग का मतलब यहाँ पे यूज करना, जस्ट वर्क जस्ट लाइक ए कमांड. एंड नेम स्पेस, देखो नेम स्पेस की अगर हम बात करें तो इट विल बी ए जस्ट ए कंटेनर और ए फोल्डर. देयर ऑल थिंग्स पुट इन सिनेरियो लाइक यूनिक आइडेंटिफिकेशन. यानी प्रोग्राम के अंदर जितना भी कंटेंट होगा उसको नेम स्पेस जो कंटेनर फोल्डर होगा उसके अंदर रखा जाएगा, और यहाँ वहां पे कुछ भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए. ठीक है सर, ये चीज आप एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में नहीं आया. ओके देखो, नेम स्पेस एक आपका फोल्डर रहेगा. ठीक है, C++ Yes, sir. जो भी आप प्रोग्राम बनाते हो
उस प्रोग्राम के अंदर आप यूजिंग नेम स्पेस यूज करते हो तो वहां पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो होगी वो आपको एक फोल्डर प्रोवाइड करवा देगी, वहां पे एक स्पेस प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, अब जो भी प्रोग्राम आप डेवलप कर रहे हो उस प्रोग्राम के अंदर आप आइडेंटिफायर्स यूज करोगे, आप वहाँ पे फंक्शंस यूज करोगे, आप वहाँ पे वेरिएबल्स यूज करोगे, आप वहाँ पे बहुत सारे टोकन्स यूज करने वाले हो। तो नेम स्पेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि यहाँ पे कोई भी जो नेम है, चाहे वो आइडेंटिफायर नेम हो, चाहे वो वेरिएबल नेम हो, चाहे वो फंक्शन, किसी भी टाइप का आइडेंटिफायर हो, वो डुप्लीकेट नेम के साथ स्टोर नहीं होना चाहिए। एवरीवन हैज ए यूनिक नेम। यस सर। ओके, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेम स्पेस। तो कोई जरूरी नहीं है हम यूज करें। था सर। बताइए। जैसे नेम स्पेस अगर अपन लोग यूज नहीं करते हैं, जैसे मैंने अपने C++ में यूज नहीं करी थी, तो सर सी आउट फंक्शन वर्क ही नहीं कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। देखो, आई थिंक सम ऑफ कंपाइलर इश्यूज इज आल्सो, कुछ कंपाइलर्स जो है वो बिना नेम स्पेस के अलाउड ही नहीं करते, वो रेस्ट्रिक्ट होते हैं इस चीज के लिए। भाई कंपाइलर डिजाइन करने वाला अगर ये सोचता है कि भाई मुझे इस पे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है कि मैं प्रोग्राम को कंपाइल करते टाइम इस चीज को चेक करूं कि कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, इसलिए वो ऑलरेडी मेंशन कर देता है, कंस्ट्रेंट कर देता है कि आपको नेम स्पेस यूज करना ही है। सो दैट विल बी वेरी ऑन कंपाइलर्स, है ना। अच्छा, मतलब ऑनलाइन कंपाइलर पे करेंगे तो बिना नेम स्पेस के चल जाएगा। बिल्कुल, यू हैव टू ट्राई। आप Yes, जीडीपी sir, पे I will ट्राई try. करके बिल्कुल यू हैव टू ट्राई, है ना। तो नेम स्पेस इज जस्ट आइडेंटिफिकेशन कंटेनर। ओके, and it is provided by standard library, C++ standard library. So that's why we have to use std word with namespace. ठीक है, these are, yes. सर आपने बोला कि वो आइडेंटिफायर यूनिक होने चाहिए, लेकिन अगर हम डिफरेंट स्कोप में इस्तेमाल करें, मतलब ग्लोबल स्कोप में एक सेम नेम का वेरिएबल है और एक फंक्शन स्कोप में हो, तो मतलब उसको यूज कर सकते हैं। दैट विल बी परमिटेड, क्योंकि आप पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो है वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते, है ना, है ना। So finally we go on our third statement, that will be main function. Main function के बारे में आप already develop your understanding in C language, so that is not new for us. Main function mainly हम क्यों यूज करते हैं ये आप अच्छे से जानते हो, है ना। It is a function or it is a user defined function or system defined function? System defined. Sure? Yeah. Yes sir. एक बार इसको सर्च करना आप लोग, है ना। Yes sir. है ना, मैं आपके नॉलेज पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, बट यू हैव टू सर्च द कैटेगरी ऑफ फंक्शंस वंस, दैट विल बी सिस्टम डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो मेन फंक्शन मेनली हमें प्रोवाइड करवाता है ब्लॉक्स की, एक्चुअली दैट विल बी इंडिकेट टू कंपाइलर दैट यू हैव टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम हियर, है ना। तो ये कंपाइलर को बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है कि आप यहां से एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट करो। सो नथिंग इज न्यू, बट वी हैव to move on demonstration and then अपना टाइम भी आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, हमें सेशन जो है वो एंड करना पड़ेगा। हम सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए, नो इश्यू। इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं और उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। In this demonstration there will be some role of these statements we already discussed.
सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मान लो हैश इंक्लूड का रोल जो है वो क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे राइट किया और यहाँ पे मैंने हैश इंक्लूड वाले लाइन को मेंशन नहीं किया है। देखो नेम स्पेस से तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट दैट विल बी इफेक्टेड द प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो विदाउट हेडर फाइल हम यूज करते हैं। तो कंपाइलेशन स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन, मेन फंक्शन से कंपाइलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रही है। क्या एरर आ रही है? इंक्लूड आयोस्ट्रीम और प्रोवाइड ए डिक्लेरेशन ऑफ सी आउट। या तो आप सी आउट को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करो, या आप ये बताओ कि ये सी आउट कहाँ से काम करेगा, इसकी हेडर फाइल कहाँ पे, इसके लिए कोई फंक्शन या कोई फाइल इंक्लूड करो, ठीक है। तो ये एरर यहाँ पे डिस्प्ले की जा रही है। अब हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया है आयोस्ट्रीम को, और नेम स्पेस को भी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज था कोड तंत्र, दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन कंसोल स्क्रीन, ठीक है। देन वी ट्राई सम in some another way. There will be a function included in this program, SQRT. I think you already aware about this. ठीक है? Yes sir, maths.h, Yes. cmath.h. Okay, so I initially I don't have math.h in this program, and I will execute this. So what kind of errors here? Displayed error SQRT was not declared in this scope, ठीक है। तो इस टाइप की एरर्स जो है वो हेडर फाइल की वजह से यहाँ पे आपको डिस्प्ले होती है। देन आई विल पुट एंड री एग्जीक्यूट, then the SQRT function works properly and give us the appropriate output.